Those of you who have been following CET colleges and Maharashtra colleges particularly, you would have seen one notification come out in the February month of this year, जहाँ पे सिमसरी ने अपना MSc Finance के कोर्स को अनाउंस किया था and they had mentioned that they are going to start a batch this year. Now the official notification from Simsri's end is out and they have given the details in terms of how should you be applying if you wish to be a part of the MSc Finance program and क्या क्या चीज़ें यहाँ पे consider करनी चाहिए. So what I will do is I will just take you through the entire process that is there and at the end we will discuss कि किसको अप्लाई करना चाहिए किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए. So let's get going. Important things पहले देख लेते हैं कि भाई क्या है ये. This is the first batch that is going to happen, so nobody has any idea कि क्या placement होने वाला है, किस टाइप के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्या exactly कंपनीज का रिस्पॉन्स होगा, क्या exactly कॉलेज का रिस्पॉन्स होगा. We don't really know all those things, but we know that this is the first batch. Simsri is a decent brand. I will not say it's the best brand in the country. Of course I will not say that it is not something that you should not consider at all. दोनों के बीच में कहीं पे आता है. It's a decent brand. It's a very old brand, old college. Lot of decent alumni have passed out of Sydenham and Simsri. So definitely there is some legacy that is there at play. But this is of course the first batch for MSc Finance. अब यहाँ पे you have to understand one small thing. जो MMS और MBA entrance tests होते हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी होती है या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी होते हैं. So those things are what we look at. But यहाँ पे there is Dr. Homi Bhabha State University who is conducting this program with Simsri. अब इनके अंदर काफ़ी सारे colleges आते हैं. The most reputed one probably is Sydenham College itself. Elphinstone College है. Then there is Simsri that is there. Then chemistry का college है, chemical technology का college है. So all these colleges are there. So but तुम्हारा जो डिग्री होगा वो होमी बाबा डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी से आएगा. राइट नाउ एप्लीकेशन विंडो इज फ्रॉम द 1st of June to the 30th of June. So the applications are already open. Now बहुत बड़ा विंडो है, 30 days का विंडो तो you would not have thought of at this point in time. मतलब अगर ये अगस्त सितंबर अक्टूबर होता I would have still understood 1 month का विंडो, बट अभी तो मतलब 1 month का विंडो दिख रहा है मुझे यहाँ पे. Now that basically tells me that Simsri is not really expecting a lot of applications, right? थोड़ा सा uncertainty है उनके पास भी. That is why they have said कि हम लोग बड़ा विंडो रखेंगे, जिसको भी अप्लाई करना है कर लो. तब तक काफ़ी सारे कॉलेजेस के रिजल्ट्स आ चुके होंगे. मे बी अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू अप्लाई टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ दिस एप्लीकेशन विंडो. ऐसा हो सकता है. Now because of which I think this is a fine step, it's okay, but application window थोड़ा सा लंबा है compared to usual. The second thing that tells me that the college is desperate to make sure that they have sufficient intake for the first batch is this. They are going to consider CET, CAT, CMAT, ZAT, ATMA, MAT, GMAT scores. सारे के सारे exams के scores वो consider करने वाले हैं, मतलब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. And they will definitely look at your profile if you have a valid score from any of these tests that we have here. अब यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए. तो ऐसा भी नहीं है कि कैट के अंदर हम 50 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल के नीचे के लोगों को देखेंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं बोला है. दे हैव जस्ट मेंशन दैट यू शुड हैव अ नॉन जीरो स्कोर. नाउ टेक्निकली मैथमेटिकली स्पीकिंग नॉन जीरो का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए. बट ठीक है चलो, नॉन जीरो स्कोर मतलब यू शुड हैव अ पॉजिटिव परसेंटाइल. दैट इज बेसिकली व्हाट दे मीन आई बिलीव, और अ पॉजिटिव स्कोर जहाँ पे भी तुमको स्कोर मिला हुआ है. सो कैट के अंदर अगर कोई सेक्शन के अंदर स्केल स्कोर कुछ -2.5 कुछ हो रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई using your CAT score, but then I am sure that you would not have got a negative or a zero at all of these tests, right? So everybody practically is eligible to apply to Simsri MSc Finance वाला course. अब यहाँ पे एक Google form दिया हुआ है and that Google form, to be very honest, deserves a review video of its own. It is possibly one of the worst Google forms that I have ever seen. मतलब इतनी सारी चीज़ें पूछी हुई उसके अंदर. I think as some of my students jokingly said, they have maybe thought that चलो यार मतलब बहुत सारे लोग जो होंगे जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो इतना फॉर्म फिल ही नहीं करेंगे, वो बीच में ही छोड़ देंगे और बोलेंगे भाई मुझे नहीं करना अप्लाई. सो इफ दे वांटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू अप्लाई, मे बी दे कुड हैव मेड द एप्लीकेशन बिट अ बिट ईजियर. इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग गूगल फॉर्म एंड इट इज़ वेरी अनोइंग, राइट? उसमें सब कुछ पूछा हुआ है. योर पेरेंट्स नेम्स हैव बीन आस्क्ड ट्वाइस. यू आर सपोज टू गिव योर पेरेंट्स फोन नंबर्स. यू आर सपोज टू पुट योर आधार कार्ड, अपना कास्ट बताओ, अपना रिलीजन बताओ, अपना ये बताओ, अपना वो बताओ. मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड दे वांट डेटा, बट दिस इज अ बिट टू मच,
मच, राइट? सो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, दैट्स वाई आई स्पेंट अ मिनट ऑन दिस, बट हाँ मतलब यू हैव टू डू इट इन के इफ यू वांट टू अप्लाई टू सिमसरी. अब यहाँ पे 1200 रुपीज़ इज वॉट यू विल हैव टू पे इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी कैंडिडेट एंड इफ यू आर अ रिजर्व्ड डैश कास्ट, ये दिया हुआ है, दिस आर द ऑफिशियल वर्ड्स दैट दे हैव मेंशन्ड. यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज़ टू अप्लाई फॉर कंसिडरेशन टू दी फॉर द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा. सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. वहाँ पे कुछ ग्रुप एक्टिविटी या वैट वगैरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं. इट्स बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. नाउ हु शुड अप्लाई, किसने अप्लाई करना चाहिए प्रोग्राम के लिए? ऑफकोर्स ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा नया है, सो नोबडी नोज व्हाट द बैच कंस्ट्रक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक. इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, मेल्स, फीमेल्स, फ्रेशर्स, वर्कएक्स, क्या होने वाला है नोबडी नोज. बट यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी कम है, 3 lakhs पर एनम के भी नीचे का अर्निंग पोटेंशियल है. सी योर कैट्स आर फाइन, डिसेंट है कैट्स, बट अर्निंग पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है. मे बी बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड कॉलेज, गुड ब्रांड इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेजुएशन कॉलेज. ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की, मार्क्स मिले बट पढ़ाई नहीं की थी, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब. फेयर इनफ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट दैट यू अप्लाई बिकॉज इट्स अ डिसेंट कोर्स. आई डोंट सी कि इसका प्लेसमेंट बहुत ही खराब होने वाला है. सो आई लुक एट इट इन द लास्ट पॉइंट, बट मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक ठाक ही कोर्स होने वाला है. नाउ एवरेजिश एकेट्स, अब एवरेजिश एकेट्स का ये मतलब ये नहीं कि 50-50-50 है तो कर लो, बट मेरे हिसाब से इफ यू हैव 1 or more 7s ऑन योर CV, देन मे बी यू कैन लुक एट इट. एक आधा 6 होगा तो भी कर सकते हो, तो 776, 766 ऐसा कुछ अगर प्रोफाइल है यू कैन अप्लाई. 666, 555 कैन टेक्निकली अप्लाई, बट मेरे हिसाब से इनको एप्लीकेंट्स मिलने वाले हैं. ऐसा नहीं कि इनको एप्लीकेंट्स नहीं मिलेंगे. सो आई एम प्रेटी श्योर दैट दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पीपल विद बेटर अकैट्स. सो इफ यू हैव लो, लेस देन एवरेज अकैट्स, पुअर अकैट्स, थोड़ा सोच के अप्लाई करना, बिकॉज यू मे और मे नॉट गेट अ कॉल, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को बुलाएंगे और काफ़ी कम सीट्स होने वाली हैं, इज माई अंडरस्टैंडिंग. Now, if you are not even sure of getting an 80th percentile at CAT 2025, I would suggest to apply and try to see if you are able to get through this year itself. Course decent होगा तो यहाँ पे apply कर सकते हो. genuine interest in finance होना चाहिए. Don't go for SimSri, MSc Finance, because the next option that you're going to get is say a Wellinger or a Pumba or an SIES or an MET or a Chetna or an IES. ये सब options नहीं चाहिए. इसके लिए मैं SimSri, MSc Finance ले रहा हूँ या ले रही हूँ, doesn't really make a lot of sense. Go for it only if you are genuinely interested in finance. कुछ finance के बारे में idea है तो I'm not expecting you to be commerce graduates or economics graduates, मैं वो expect नहीं कर रहा हूँ, but at least know कि किस टाइप के roles आते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं सिलेबस के अंदर, करिकुलम कैसा होगा, वुड यू लाइक टू डू अ जॉब दैट इज फोकस्ड ऑन फाइनेंस, BFSI का कुछ जॉब होगा तो करने में इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, ये एक बार देख लेना. ओनली इफ द आंसर टू दैट इज येस, ओनली देन गो फॉर इट. एंड सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज MSc सिमसरी वर्सेज MMS/PGDM कोर ऑफ अदर कॉलेजेस. तो मैं कैसे कंसिडर करूंगा इसको? मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, आई थिंक MSc सिमसरी, MSc फाइनेंस फ्रॉम सिमसरी इज गोइंग टू गिव यू एन एवरेज सैलरी ऑफ अराउंड 8-9 lakhs per annum आफ्टर 2 years इज माई अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. ज़्यादा होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 8-ish lakhs per annum इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर यू आर डन विथ योर MSc फाइनेंस. अब उसके आगे जाके जो 1-2 जॉब स्विचेस होंगे, उसके बाद योर करियर विल बी डिसाइडेड बाय हाउ गुड यू आर एट योर जॉब, और कुछ डिसाइड नहीं करेगा. तो सिमसरी MSc फाइनेंस था कि JB MSc फाइनेंस था कि क्या था, उससे डिसाइड नहीं होगा. इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस यू मेक, हाउ गुड आर यू एट योर जॉब, एंड क्या मतलब अचीवमेंट्स रहे हैं थ्रू आउट योर 5-10 years ऑफ योर इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर. ठीक है, तो ये होगा, तो वहाँ पे मैटर नहीं करेगा. बट इमीडिएटली अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, यू आर गेटिंग MSc सिमसरी, एंड उसका ऑल्टरनेटिव इज अ कॉलेज विच इज बियॉन्ड द टॉप 10, राइट. सो जो मैंने CET के कट ऑफ्स की लिस्ट का एक वीडियो बनाया था व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट, वहाँ पे आई हैड रिटन टॉप 10 कॉलेजेस एंड 11 to 20 कॉलेजेस. तो अगर पहले वाले स्लाइड के कोई कॉलेज में से अगर कॉल आ रही है या फिर देयर यू आर एबल टू गेट एडमिशन, गो फॉर इट. यू कैन चूज दैट ओवर MSc फाइनेंस. सिमसरी इज माई सजेशन. एंड इफ यू आर गेटिंग 11 to 20 या उसके बाद के कॉलेजेस अगर मिल रहे हैं थ्रू दी MMS वाला पार्ट, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कंसिडर MSc सिमसरी, स्पेशली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, राइट. सो ये सारी चीज़ें होंगी दैट विल हेल्प यू अप्लाई टू MSc फाइनेंस फ्रॉम सिमसरी. इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर प्रोफाइल या whether you want to apply or not, do let me know in the comment section and I'll try to help you with your query.